अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से मुराद दूसरी ज़बान का हुसूल, दूसरी ज़बान की जानकारी, दूसरी ज़बान के बारे में जानना, दूसरी ज़बान को बोलना, लिखना, पढ़ने के काबिल होना। वो दूसरी ज़बान जो कि आपकी अपनी पहली ज़बान नहीं है। ठीक है। वी हैव आवर फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज लाइक उर्दू, पश्तो, सिंधी, बलोची. These languages belongs to our native languages. But when we try to learn another language like English, so English will be considered as second language. As I said, the first language which we belongs is probably Pashto, Sindhi, Urdu and so on. But when we try to understand about the second language like English, like Spanish, like other many languages which are being spoken in the world, that particular language will be considered for us as second language. Okay. So in this topic today we will try to learn 4 things. Number 1, what is second language acquisition? First we will try to understand what is second language acquisition, followed by the process of second language acquisition. The third one is there are different stages involved there in second language acquisition, and we will try to learn all these stages. And at the end of today's lecture, we will try to understand the importance of second language acquisition. So there are 4 objectives and 4 subtopics we have as far as this second language acquisition topic is concerned. Okay, so we start. What is second language acquisition? The second language acquisitions, also called SLA. SLA stands for second language acquisition, is the process by which people learn a language other than their native language. अपनी ज़बान के अलावा वो ज़बान जो आपकी कौमी ज़बान, आपकी पहली ज़बान, मादरी ज़बान नहीं है, उस ज़बान को छोड़कर कोई दूसरी ज़बान आप सीखते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है. अंडरस्टैंड? Why is it called second language? Now the question raised, why we consider that this is second language? Why it's called second language? Why not third language, fourth language? Why second language? Because when we learn about the second language, we will able to write, read, speak and understand after listening someone in that language. So we use this language parallelly with our first language. That is why it's called second language. Got it? A second language is any language. The second language is any language that a person uses other than a first native language. Very much clear. Contemporary linguistics and educators commonly use the term L1 to refer to the first or native language, and the term L2 refer to a second language or foreign language that is being studied. जो ज़बान हमारी अपनी ज़बान है, जिसमें हम रोज़मर्रा में गुफ्तगू करते हैं, उसमें लिखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसके ज़रिए डायलॉग्स करते हैं, उसके ज़रिए राब्ता करते हैं, वो हमारी मादरी ज़बान भी है, वो हमारी कौमी ज़बान भी है, वो हमारी L1 कहलाती है. ठीक है. उस ज़बान से हटकर कोई दूसरी ज़बान, यहाँ अंग्रेज़ी शर्त नहीं है, एनी लैंग्वेज. If you closely look at that, the definition, a second language is any language, not particularly English, could be any language,
उसके बाद हम उस जबान को जब सीखते हैं तो पैरेलली मुतवाजी तौर पर हम उस जबान में भी वही काम करते हैं, हम वही डायलॉग्स करते हैं, उसको हम राब्ते की ज़बान भी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लिखते भी हैं, उसे हम पढ़ते भी हैं। तो वो तमाम जो अमल है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ हो रहा होता है वही हम सेकंड लैंग्वेज के साथ करते हैं। यानी सेकंड लैंग्वेज से यहाँ मुराद आपकी अपनी ज़बान के साथ एक और ज़बान जिसे आपने इसलिए सीखा, इसलिए जाना कि उसके ज़रिए भी आप कम्युनिकेट करें, रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन या रीडिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तो इसकी एक डेफिनेशन थी। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड the process involved in second language acquisition. It involves various stages and factors including exposure, practice and cognitive development. Number 1 है input. इसका प्रोसेस, इस अमल का आगाज होता है सुनने और पढ़ने से। इसको इनपुट इसलिए कहा गया है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 4 स्किल्स बताई थी, जिनमें 2 स्किल्स हमारी प्रोडक्टिव हैं और 2 हमारी रिसेप्टिव हैं। तो इसका आगाज होता है रिसेप्टिव स्किल से, यानी सुनने से। जब भी आप कोई दूसरी जबान सीखते हैं तो उस जबान में आपका एक्सपोजर, उस जबान से आपका एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। आप उस जबान के बोलने वाले जब बोलेंगे तो आप सुनते हैं, और उस जबान में जो लिटरेचर अवेलेबल होता है उसे आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है? लिसनिंग एंड रीडिंग से। कोई भी नई जबान, सपोज आज आप बैठकर आप चाहते हैं कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज आए, तो स्पेनिश लैंग्वेज में आपका एक्सपोजर होना कहां से स्टार्ट होगा? सुनेंगे उन लोगों को जो स्पेनिश बोल रहे हैं, और स्पेनिश लिटरेचर जो आपको मिलेगा उसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का इनपुट फेज कहलाता है। फॉलोड बाय इंटरेक्शन। अब आपको अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन फैसिलिटेट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आपको मौके मिलने चाहिए, हर उस शख्स को मौके मिलने चाहिए जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का हिस्सा है। अपॉर्चुनिटीज, मौके किस चीज के? मौके इंटरेक्शन के, तफाउल के, सोशल इंटरेक्शन। जब आप सोशली इंटरेक्ट होंगे उस जबान के बोलने वालों से तो ही आप इस अमल का हिस्सा बनेंगे, तभी आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरी जबान एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीख सकें। जब तक आपका समाजी तफाउल नहीं होगा आप उस जबान को सीखने के काबिल नहीं रहेंगे। राइट? अब आ जाती है तीसरी चीज, आउटपुट। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग हेल्प्स लर्नर्स अप्लाई एंड सॉलिडिफाई देयर लैंग्वेज स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल का इस्तेमाल होगा। ये इसका तीसरा फेज है इस प्रोसेस का। रीडिंग और लिसनिंग से स्टार्ट था, फिर अपॉर्चुनिटीज, कन्वर्सेशन की, समाजी तफाउल की, इंटरेक्शन की, उसके बाद उस लैंग्वेज में आप बोलना स्टार्ट करते हैं। यकीनन आप गलत बोलते हैं, एरर करते हैं, यू यूजुअली मेक मिस्टेक्स, इवन यू ऑफन मेक मैनी मिस्टेक्स, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ओवरकम ऑन योर मिस्टेक्स। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस in any language acquisition. And try to write. At least you start to write something on that language. So it will enable you to overcome on this language and to learn that language. So how many processes involved in the process of second language acquisition? So far 3. There are 2 others. फीडबैक भी इस प्रोसेस में बहुत अहमियत का हामिल होता है। फीडबैक क्या है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वेदर फ्रॉम टीचर्स और पेयर्स
aids in correcting errors and refining language abilities. जब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से एज ए लर्नर आप वाबस्ता होते हैं तो एज आई सेड यू मेक मेनी मिस्टेक्स एंड इट इज ऑब्वियस, इट इज नेचुरल, इट इज यूजुअल बिकॉज दिस लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू यू, सो यू विल डेफिनेटली मेक मिस्टेक्स. But it's a responsibility of teachers and your peers who know that language to give constructive feedback, ताकि आप उससे इनकरेज हो, वो आपको डिस्करेज ना करे बल्कि इनकरेजिंग फैक्टर होना चाहिए. जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उस मिस्टेक्स को वो सही करे, आप निशानदही करें कि आपने ये मिस्टेक्स की है और आप ये मिस्टेक्स ना करें, बोलते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, सुनते वक्त. चारों स्किल्स में जो आप मिस्टेक्स करते हैं तो फीडबैक आपको मजीद आपके इस प्रोसेस में आसानी पैदा करता है. ये फीडबैक यूजुअली टीचर्स की तरफ से होता है और आपके पेयर, आपके जो साथी हैं उनकी तरफ से. ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? फिर एक और हमारे पास इस प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसको मोटिवेशन कहते हैं. ये बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बगैर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत मुश्किल हो जाती है. क्या है ये? अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट अ लर्नर्स प्रोग्रेस इन एक्वायरिंग अ सेकंड लैंग्वेज. Whenever, suppose you are English, you have a command on English language and she does not have a command, she is a new learner, and while she communicating with you, usually she makes mistakes. When you motivate her that don't worry, it is usual, definitely you will make mistakes, but I motivate you, I encourage you to carry on, keep it up. Soon you will be able to speak, write, read and listen correctly. So your motivation means those people motivation who already know that language. They motivate other people. They motivate those people who are learning that language. Their motivation matters. Okay? The third one is age. Age is also a factor. Younger learners often acquire language more easily. But adults can still achieve high proficiency with dedicated effort. ये देखने में आया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि जो एडल्ट्स होते हैं वो नहीं सीखते. लेकिन उनकी सीखने की रफ्तार डिपेंड करती है कि उनकी डेडिकेशन कितनी है, उनका अपना इंटरेस्ट कितना है उस जबान में. जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना वो जल्दी सीखेंगे और दुरुस्त सीखेंगे. लेकिन एज कंपेयर टू लिटिल लर्नर, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं. ठीक है. आखिर में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बहुत अहम है. हर लैंग्वेज किसी न किसी कल्चर से एसोसिएटेड है. उर्दू लैंग्वेज का अपना एक कल्चर है. उर्दू लैंग्वेज के मैनर्स, बोलने के एटिकेट्स, बोलने के, सोचने के, मूवमेंट के, बिहेवियर्स, हर जबान के साथ कल्चर एसोसिएटेड होता है. तो जो जबान आप सीख रहे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, उस जबान के कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग द कल्चर कॉन्टेक्स्ट of the language can enhance comprehension and language use. अगर आप इंग्लिश जबान सीखते हैं तो आपको इंग्लिश मैनर्स, इंग्लिश एटिकेट्स, इन पर भी तवज्जो देनी होगी. ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा मदद फराहम करेंगे. अगर आपको याद हो, मैंने अपनी पिछली क्लासों में आप लोगों से कहा था कि आपका जो एक्सेंट है ना, लहजा, ये आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाता है. अगर आप प्रॉपर इंग्लिश लहजे में गुफ्तगू करेंगी तो आप ज्यादा रवानी से गुफ्तगू करेंगी. यहां कॉम्प्रिहेंशन, जब आप उसके कल्चर के अंदर इन हो जाएंगे ना, इंग्लिश कल्चर का हिस्सा बनेंगे,
इंग्लिश के कल्चर में रहते हुए इंग्लिश जबान सीखेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था। आगे चलते हैं। हमारा जो थर्ड है कि अब इसके अपने स्टेजेस भी हैं। स्टेजेस से यहां मुराद ये अभी तो हमने आपसे जिक्र किया, ये प्रोसेस था कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। अब हम स्टेजेस की बात करेंगे क्योंकि इसके अपने स्टेजेस भी हैं। हर चीज किसी वैक्यूम में नहीं होती और ऑल ऑफ दी सडन वकू पजीर नहीं हो जाती। कोई भी चीज, लैंग्वेज भी इस तरह नहीं होता कि आज आप ने स्टार्ट किया लैंग्वेज एक्विजिशन, किसी लैंग्वेज को जानने की कोशिश आज से स्टार्ट की और विद इन नो टाइम अगले दिन ही आप वो लैंग्वेज सीख लें। ऐसा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। इवन कि जो आपकी मादरी जबान भी है, इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आप अपनी माँ की गोद में रहते हैं, ठीक है, सालों लगते हैं इस चीज को। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, माँ माँ पापा से करते हैं, फिर थोड़े मजीद साल गुजरते हैं, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप वो अपनी मदर टंग में गुफ्तगू कर सकें। तो जो मदर टंग में जब ये सिचुएशन है तो ये कैसे मुमकिन है कि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है वो ऑल ऑफ दी सडन आप कहें कि मुझे तो आ गई? ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। इसके अपने स्टेजेस हैं। अगर आप गौर करें इसको तो इसका जो पहला स्टेज होता है ये प्री प्रोडक्शन स्टेज कहलाता है। प्री प्रोडक्शन स्टेज क्या है? इसमें लिमिटेड वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। हर वो शख्स जो किसी नई जबान को सीखना स्टार्ट करता है, इब्तिदा में उसकी जो ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है उस जबान की, और उसका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल भी कम होता है। साइलेंट पीरियड वेयर लर्नर्स आर एब्जॉर्बिंग द लैंग्वेज, ये वो स्टेज होता है जिसमें एक लर्नर जो है उस जबान को जो है एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है कि एटलीस्ट ये जबान है क्या, इस जबान के कवायद क्या हैं, इस जबान का स्ट्रक्चर क्या है, इस जबान का सेंटेक्स क्या है, इस जबान का के जो है वो प्रैग्मेटिक्स क्या हैं, इस जबान के साउंड्स क्या हैं। ये एब्जॉर्बिंग पीरियड होता है। हर नई लैंग्वेज को सीखने का जो पहला स्टेज है वो एब्जॉर्बिंग स्टेज, फॉलोड बाय अर्ली प्रोडक्शन। अब यहां से स्टार्ट होती है उसकी प्रोडक्टिविटी उस लैंग्वेज में। कैसे? बिगिन्स यूजिंग शॉर्ट फ्रेजेस एंड सिंपल सेंटेंसेस। वो छोटे छोटे जो जुमले हैं उनसे वो स्टार्ट करता है। सपोज अगर आप इंग्लिश कोई नया बंदा सीखना स्टार्ट करता है तो गो, कम, सिट, स्टैंड अप, कम, व्हाट आर यू डूइंग, how are you, who are you. These are very simple and short sentences. So the early learners start after absorbing the language, after observing in fact the language, he or she starts to use short sentences because the vocabulary is very much low. He or she doesn't have a reasonable command on that language. That's why he or she is using a short sentences and phrases. Are you getting what I'm trying to say? Okay. Now, the third stage is called speech emergence. Increased ability to form more complex sentences, begins to express ideas more fluently. Now the person is trying to use complex sentences, complex phrases, means he is now better than the phase as we discussed earlier, the second one in early production. Now he is capable to use that particular language in a reasonable amount. Okay. The fourth one is intermediate fluency, not a complete fluency but intermediate fluency. ग्रामर एंड वोकैबुलरी यूजेज, इस एज में ग्रामर और वोकैबुलरी जो ऊपर डेवलप हुई है अब उसका इजहार होता है, वो आपके बोल चाल में वो अल्फाज आते हैं। ठीक है। कैन एंगेज इन मोर एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन,
कन्वर्सेशन का टाइम बड़ा बढ़ जाता है। अब वो जहां छोटे छोटे जुमलों में गुफ्तगू करता था, अब वहां 1-2 मिनट तक की गुफ्तगू को कर सकता है, या 2 मिनट अगर कोई उससे बात करे तो उसको सुनकर समझ सकता है, बुनियादी चीजें वो लिख पढ़ सकता है, लेकिन वो मिस्टेक करता है। जो लास्ट स्टेज है इसको हम कहते हैं एडवांस्ड फ्लुएंसी। एडवांस फ्लुएंसी क्या है कि अब उस जबान में उसकी फ्लुएंसी, राइटिंग फ्लुएंसी, रीडिंग फ्लुएंसी, लिसनिंग फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग फ्लुएंसी वो नियर टू नेटिव लैंग्वेज हो जाती है। यानी अगर उसकी नेटिव लैंग्वेज L1 लैंग्वेज 1 उर्दू है, तो जिस रवानी से बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किए उर्दू वो बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, सुन के समझ सकता है, यही काम उस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे जब होने लग जाए तो ये उसका लास्ट स्टेज है, जिसको कहते हैं एडवांस फ्लुएंसी। एबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टास्क एंड अंडरस्टैंड नॉनसेंस। ठीक है, आर यू गेटिंग? इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क, यू कैन table your question, and if you don't have we can move. Don't have? सर हम बात करते हैं। यस प्लीज। ये आपने जो स्टेजेस बताए हैं तो इन स्टेजेस की एप्लीकेशन क्या क्लास वाइज कहेंगे या हम किसी भी एज पे कह सकते हैं? ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको पहले इसकी नॉलेज दी गई है। ये आपके लिए एज ए नॉलेज है कि ये आपको बीइंग ए लिटरेसी टीचर मालूम होगा कि सेकंड लैंग्वेज के जो एक्विजिशन के स्टेजेस हैं वो क्या है। अगर आप इसकी ये पिक्चर पर गौर करें तो ये आपको एक प्रोग्रेशन में नजर आ रहा होगा स्टेयर्स वाइज, प्री प्रोडक्शन के बाद अर्ली प्रोडक्शन। जब आपके नॉलेज में ये चीज होगी तो उस हिसाब से आप लर्नर को लेके चलेंगे। यानी अगर आपका वो प्री प्रोडक्शन का पीरियड है तो आप उसे कुछ बोलने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये ज्यादा सुने, क्योंकि आप जानती हैं कि ये प्री प्रोडक्शन फेज में है। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज फॉर लिटरेसी टीचर। ये उस लर्नर को पता नहीं है जो लर्न करेगा, सेकंड लैंग्वेज सीखेगा, उसे नहीं पता, सिखाने वाले को पता है। नहीं सर, देखें जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज से नहीं, मतलब प्री प्राइमरी से हम सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी तक पढ़ रहे होते हैं, पर हम एडवांस स्टेज पे तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके अगर हम नहीं पहुंच पा रहे एडवांस स्टेज पर तो ये हमारे इंस्ट्रक्शनल वीकनेसेस हैं। ये स्टिल ऑल्दो वी हैव डन मैनी मास्टर्स डिग्री graduations, we have successfully completed our graduation and we claim that we have completed our education, but still despite of all these degrees we are still unable to conversate with someone in a reasonable pace. We are still unable to write properly in a reasonable pace without making any mistakes. Exactly. स्पीच इमर्जेंस में हम रुक गए हैं, वहां से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसके आगे की जो स्टेप्स है वो जो पहला स्टेज होता है उसे प्री प्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। और इस प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? इस प्री प्रोडक्शन स्टेज के अंदर लिमिटेड वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन साइलेंट पीरियड, ये साइलेंट पीरियड होता है। साइलेंट पीरियड से मुराद जो सीखने वाला है उसे आपने वेयर लर्नर्स आर एब्जॉर्बिंग द लैंग्वेज, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट दिस लैंग्वेज एग्जैक्टली इज। बिल्कुल नई चीज है, वो एब्जॉर्बिंग पीरियड है। हमें उस एब्जॉर्बिंग पीरियड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। अगर आप देखें ना उसके नीचे अर्ली प्रोडक्शन में जो है वोकैबुलरी एक्सपेंड बट एरर कॉमन, सुनना चाहिए लर्नर्स को। जब आप वो सुनेगा उसके बाद ही प्रोसेस में हमने डिस्कस किया ना, सुनकर उस लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट लिया जाएगा। तो ये हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनके प्रोग्राम्स की कमजोरी है, हमारी बच्चों की कमजोरी को मैं कंसीडर नहीं करता। जाहिर है कि बच्चे तो सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे।
जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी इस टेक्निक पे अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब जैसे हम जहाँ वहाँ जाते हैं तो मैंने खुद 2-3 मंथ्स गई हूँ, तो वहाँ पे भी इस तरीके से मतलब वो लर्निंग नहीं करा रहे होते। और मतलब हम एंड जो उनके स्टूडेंट्स निकल के भी आते हैं ना, तो वो इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होना चाहिए ना, वो नहीं होता और ना ही कमांड हासिल होती। असल में आप लोगों को तो ये सब बातें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अज हद ज़रूरी है, क्योंकि आपने जाकर टीचर बनकर इस सोसाइटी को सर्व करना है। आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो आने वाली नस्लों की है। तो आपको तो बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट मैटर कमांड और आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपको एप्लीकेशंस के मेथड्स मालूम होने चाहिए। इसलिए इस इदारे में आप पर ज़्यादा काम होता है और आप फील भी करती हैं कि देखिए आप पे काम हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होता, डायलॉग्स नहीं होते। एक ह्यूमन बीइंग किसी भी लैंग्वेज को डायलॉग्स, इंटरेक्शंस, कन्वर्सेशन के थ्रू सीखता है, ना कि ट्रेडिशनल तरीकों से। ठीक है, क्यों ना हम अब अपना जो लास्ट टॉपिक था कि इंपॉर्टेंस क्या है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये अहम क्यों है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करार दे दें तो हमारे यहाँ ख़तो किताबत जितनी भी रिटन कम्युनिकेशन होती है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वो इंग्लिश में होती है। बावजूद इसके कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन हमारी सरकारी ज़बान आज भी इंग्लिश है। तो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन सीखना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो जो लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर भी आपका इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर लेंगे तो आपको आपकी स्टडी में आसानी पैदा होगी। ठीक है, इसके अलावा इट स्टिमुलेट योर ब्रेन। अब देखिए रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अनडाउटफुली हेल्प्स योर ग्रे मैटर ग्रो। व्हाट इज ग्रे मैटर ग्रो, बताता हूं। ओके, नथिंग चैलेंजेस द ब्रेन लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज डस। आपके दिमाग को जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी एक्टिविटी में होता है ना, वो सबसे ज्यादा किसी लैंग्वेज को सीखने में होता है। क्यों होता है ये चैलेंज? जब आप कोई भी मेंटल एक्टिविटी सरंजाम देते हैं तो जाहिर है कि एक चैलेंज होता है आपके ब्रेन के लिए, लेकिन जबान सीखने से बड़ा चैलेंज दिमाग के लिए कोई दूसरा नहीं है। दैट्स व्हाट रिसर्च से। ठीक है, क्यों? साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड दैट वी यूज द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन व्हेन स्पीकिंग अवर नेटिव लैंग्वेज। जब हमारी अपनी कौमी मादरी जबान, जो हम जिस जबान से हम एसोसिएटेड हैं, जब हम उस जबान को बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अपने दिमाग का लेफ्ट का हिस्सा हमारा इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट प्रूव दैट। Whereas second language using isn't limited to a specific hemisphere। लेकिन जब आप सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट का मसला नहीं, पूरा ब्रेन आपका इस्तेमाल होता है। मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, इट यूजेस बोथ ऑफ देम, राइट एंड लेफ्ट, इन होल ब्रेन, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द व्हाइट एंड ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस करने की और रीजनिंग करने की सलाहियतों में इजाफा होता है। हर वो शख्स जो एक से ज्यादा जबानें बोलता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है, वो ज्यादा रीजनेबल होता है, रीजनिंग बहुत करता है। ये क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरी जबान, दो जबानें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, एक्वायरिंग अ न्यू लैंग्वेज आल्सो हेल्प टू स्टेव ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड मेंटल एजिंग। एक से ज्यादा जबान बोलने वाले की जो मेंटल एजिंग होती है ना, वो भी स्लो हो जाती है। एक हमारी फिजिकल एजिंग है ना,
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो खदो खाल होते हैं उन पे फर्क आता है। दूसरा है इट इंप्रूव्स योर अटेंशन स्पेन, तवज्जो। हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे तवज्जो की जरूरत होती है। कोई भी आप काम करें अटेंशन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंसान की जो अटेंशन होती है वो भी थोड़ी कम होना शुरू होती है मुख्तलिफ एज के साथ साथ। लेकिन रिसर्च क्या कहती है, विद द ह्यूमन अटेंशन स्पैन सीमिंगली नैरोविंग मोर एंड मोर एवरी डे। ये जो हमारा तवज्जो है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनकी अटेंशन बहुत फास्ट होती है तवज्जो। जैसे जैसे बड़े होते हैं साइंस कहती है कि ये नैरो से नैरो होती जाती है अटेंशन, तवज्जो में कमी आना शुरू होती है मुख्तलिफ चीजों की तरफ जो हमारी अटेंशन। जी जी, अकॉर्डिंग टू मैनी स्टडीज, यानी रिसर्च स्टडीज बहुत सारी हुई हैं, डिसाइडिंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज मे बी द antidote to this situation. Recent studies show that the average attention span of person has reduced from 12 to 8 seconds. Researchers suggest that learning a new language helps the brain maintain focus and block distraction. अमूमन 8 से 10 सेकंड तक किसी चीज पर आपकी तवज्जो होती है। स्टडीज ये बता रही हैं कि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज पर जब फोकस करते हैं तो उनकी अटेंशन देर तक रहती है एज कंपेयर टू कॉमन पीपल अटेंशंस। इसका मतलब यह है कि ये आपका जो अटेंशन का स्पैन है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। और ये रिसर्च स्टडीज के बाद ये बात सामने आई है, ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक से ज्यादा जबानें जानते हैं तो आपका कैरियर डाइवर्स हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में अपने जो है वो नई फ्रेंचाइज खोलती हैं, नई अपना बिजनेस को प्रमोट करती हैं, नया सेटअप लगाती हैं। तो अगर आपको एक से ज़्यादा ज़बानें आती हैं और किसी कंपनी ने सपोज स्पेन में एक कंपनी लगाई तो आपको स्पेनिश आती है, तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी उस कंपनी में, ठीक है। या चाइना में उसने अपना सेटअप लगाया है और आप चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं, तो यू कुड बी सो लकी मैन, यू कुड गेट जॉब देयर। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी इसमें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फवायद है। बूस्ट योर क्रिएटिविटी, ये भी बड़ा अहम है। एक से ज्यादा जबानें बोलने वाले शख्स क्रिएटिव माइंड होता है। क्रिएटिव माइंड बोले तो तख्लीकी माइंड, यानी कि नई से नई चीज के बारे में आइडियाज उसके माइंड में आते रहते हैं, ये रिसर्च कह रही है, ठीक है। तो क्रिएटिव माइंड पीपल ज्यादातर, जरूरी नहीं है कि जिनके ज्यादा जबानें आती हों सिर्फ वही क्रिएटिव माइंड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन रिसर्च ये बता रही है कि यूजुअली ये देखा गया है मुख्तलिफ स्टडीज में कि वो लोग जरा क्रिएटिव माइंड होते हैं जो एक से ज्यादा जबानें बोलते हैं। इसके अलावा यू बिल्ड मल्टीटास्किंग स्किल्स, ज्यादा जबानें जानने वाला एक से ज्यादा काम कर सकता है बैक वक्त। इट इंप्रूव्स योर फर्स्ट लैंग्वेज, ये बहुत अहम चीज है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज सपोज इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन वो सेकंड लैंग्वेज की वजह से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। इट स्लो डाउन कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी हमारा जो ज़हन है ज़ाहिर है ये कमजोर होना शुरू होता है। एक वक्त आता है कि इंसान की यादाश्त बिल्कुल कमजोर हो जाती है, डिक्लाइन है, ये इस डिक्लाइन को स्लो करता है। इट इंप्रूव्स योर मेमोरी, अब यादाश्त भी आपकी इंप्रूव करता है। इट बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, आपका कदरे जात अपने ऊपर बढ़ जाता है। तो कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के।
आज हमने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो टॉपिक था उसके 4 एस्पेक्ट समझने की कोशिश की है। कितना समझे हैं ये तो आप ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। पहला हमने इसकी डेफिनेशन जानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते किसको है। फिर हमने इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। फिर हमने स्टेजेस और आखिर में हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी। अब वक्त है आपके सवालात को लेने का। इट्स टाइम टू टेक योर वैल्यूड क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेक्शन इज ओपन। फील फ्री एंड आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क अबाउट टुडेज टॉपिक। बी ब्रीफ। सर जो आपने बोला था फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो अनकॉन्शियसली हम ले रहे होते हैं, तो हमारा जो हाफ माइंड होता है वो ये कर रही होती है, और फिर जब हम सेकंड करते हैं तो हमारा पूरा, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली दोनों ले रहे होते हैं। वो चूंकि हम छोटे होते हैं और स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन आपके पैदा होते ही, कि आपके सुनने से आप सुन रहे होते हैं, ख़ास उम्र तक आप सुनते सुनते वो आपके माइंड के अंदर उसके बारे में डिटेल आ रही होती है, और एक वक्त आता है कि फिर आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, तो जो आपने सुना होता है वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं तो उसमें तो ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। उसमें आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, और जब ब्रेन जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है जी। ये कोग्निटिव डिक्लाइन जो आप कह रहे थे, ये 60 की एज से होता है डिक्रीज? डिपेंड्स करता है ये डीएनए पर। अच्छा। आप और मैं, हम सब का एक डीएनए है। हम अपने इंसेस्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस ख़ानदान में पैदा हुए हैं उस ख़ानदान की जो खुसूसियात हैं वो हमें पाई जाती हैं, तो ये वेरी करता है। माइक। सर जैसा आपने कहा कि हम सेकंड लैंग्वेज के जो हम जितनी भी आपने बताया सारे फ़ायदे तो बता दिए, इसका कोई नुकसान भी है? इसका कोई नुकसान नहीं। अगर हमारे पास मेरिट्स आते हैं तो हम लिख सकते हैं, अगर डीमेरिट्स आएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके डीमेरिट्स हैं ही नहीं। सेकंड लैंग्वेज नेचुरल एक लॉजिकल बात है, क्या है इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं? कोई डीमेरिट्स नहीं है। मेरिट्स मतलब यहाँ हम एम्प्टी छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन? वो आपसे पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर क्यों पूछेगा कि सेकंड लैंग्वेज के डीमेरिट्स? क्योंकि सर आपने कहा ना कि यानी अगर मैं आपसे कहूँ नमाज पढ़ने के फवायद और नुकसानात तहरीर कीजिए, तो क्या आप नुकसानात क्या तहरीर करेंगे? क्या नमाज पढ़ने के नुकसानात हैं? सही सर, तो मतलब इसके डीमेरिट्स कुछ भी नहीं है। मैंने नमाज की एग्जांपल आपको इसलिए दी। जी कंप्लीट। जी थैंक यू वेरी मच आपका पेशेंस से सुनना। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, अगर आप गो थ्रू कर लें। अब हम सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह।